All right, let's get started with the first question from sexual reproduction in flowering plants. Now, the first question is from the year NEET 2024. ReNEET. Okay, question number one बच्चे बोलता है which part of the ovule stores reserve food material? A. nucellus, B. integument, C. placenta और D. funicle. What do you think बच्चे? कौन सा पार्ट है ओव्यूल का जो एक्चुअली में रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है? तुम्हें पता है ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल के पास, ठीक है, ओव्यूल के पास ये होते हैं इंटेगुमेंट्स, दीज आर द इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स के पास ये अंदर की तरफ होता है ना mass of homogeneous parenchymatous cells जिनको हम न्यूसेलस बोलते हैं। एंड न्यूसेलस इज abundant food reserve। इंसेड में लाइन है न्यूसेलस हैज abundant food reserve। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 which is न्यूसेलस। वन सेकंड, let me just change the color. The correct answer would be option number 1 न्यूसेलस। Okay, let's move on to the next question now. Next question again from NEET 2024 ReNEET. Pollen grains remain preserved as fossils due to the presence of A. epidermal layer, B. tapetum, C. exine layer, fourth entine. What do you think बचे? तो pollen grains जो होते हैं they remain preserved as preserved as fossils. pollen grains जो होते हैं वो fossils की तरह protective रहते हैं, preserved रहते हैं, क्यों रह पाते हैं fossils की form में present? Because pollen grains अगर आप देखोगे, especially if I talk about pollen grains के around आपको बाहर की तरफ ये hard rough layer समझ में आती है। The hard outer rough layer, that is called as the exine. तो ये जो exine होती है ना, it's made up of one of the hardest organic substances which are known to man, one of the hardest organic material known to man, which is sporopollen, right? So because of the presence of sporopollen, और sporopollen ना is resistant to any kind of physical, chemical and biotic stresses, ठीक है। तो ना कोई physical agent से आप, ना कोई pressure से बहुत ज़्यादा high temperature देके, कोई बहुत ज़्यादा strong acid, बहुत ज़्यादा strong alkali can withstand it all, ठीक है। No enzyme, in fact NCERT says no enzyme that can degrade sporopollen is known so far। तो इसी protective covering of exine की वजह से अंदर का जो pollen grain है वो absolutely preserved रह जाता है, ठीक है। क्योंकि बाहर से आप उसे डैमेज कर ही नहीं पाओगे, sporopollen इतनी ज्यादा हार्ड होती है, nothing can damage it, ठीक है। So pollen grains they remain preserved as fossils due to the presence of the exine layer. Option number 3 becomes the correct answer here. I hope that made perfect sense. Okay, moving on to the next question now. The next question is question number 3. Question number 3 बच्चे बोलता है, it's again from NEET 2024 Chhajjar. Question number 3 बोलता है the flowers of Amorphophallus provide safe place for the pollinator to lay eggs. This is an example of A. amenphalism, B. anemophily, C. floral revolt, D. commensalism. What do you think बच्चे? जो फ्लावर्स होते हैं Amorphophallus की अगर मैं बात करूँ, just a moment, जो फ्लावर्स होते हैं Amorphophallus की अगर मैं बात करूँ तो वो एग लेइंग साइट प्रोवाइड करते हैं, याद है? देखो हमें पता है स्पेशली इंसेक्ट पॉलिनेशन एंटोमोफिली में ना हमें इंसेक्ट वो जो होते हैं बिकॉज वो बायोटिक एजेंट है, हमें कई सारे फ्लोरल रिवॉर्ड्स देने होता है, जैसे कि नेक्टर प्रोवाइड करना होता है, एडिबल पॉलन ग्रेन्स प्रोवाइड करने होते हैं, ऐसे फ्लावर्स को ओडर वाला एकदम अच्छी ओडर होनी चाहिए तभी फ्लावर इंसेक्ट अट्रैक्ट हो जाएगा। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में आप देखोगे जैसे कि अमोर्फोफैलस का केस वगैरह हो जाता है, उसमें तो फ्लावर जो है ना अपने अंदर जो ओवरी के अंदर खाली जगह होती है उसको लॉक्यूल बोलते हैं, वो जगह भी दे देता है, वो बोलता है पॉलिनेशन कराने के लिए ना बड़ा मजबूर है, वो कहता है यार प्लीज इसको मेरी पॉलिनेशन कर दे, काम पे मेरी ओवरी के अंदर जो जगह है ना तो इसको भी ले रहा है, तो चाहे तो इस जगह में अपने एग्स ले कर ले। सो इट प्रोवाइड सूटेबल एग लेइंग साइट फॉर द पॉलिनेटर्स। तो ये जो फ्लावर्स है अमोर्फोफैलस की सेफ प्लेस प्रोवाइड करते हैं पॉलिनेटर्स को, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन ले देयर एग। अभी अगर अपने अंदर एग्स इसके अब ये जो पॉलिनेटर्स है अपने एग्स इसके अंदर लेकर देंगे तो एग विल बी प्रोटेक्टेड, बिकॉज अगर वो एग बाहर नेस्ट में होते so there's always a chance कि कोई और आके उन एग्स पे अटैक कर जाए, और अगर फ्लावर्स के अंदर एग्स ले होंगे तो द एग्स विल बी हाईली प्रोटेक्टिव, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोरल रिवॉर्ड व्हिच एक्चुअली फ्लावर्स प्रोवाइड in the case of entomophily. Okay, I hope this is clear to you. Option number 3 becomes the correct answer here. Moving on to the next question, which is question number 4. I'm so sorry for that. One second. Alright, yeah, एक minute. Alright, coming back to question number 4, as I was saying. Question number 4 बच्चे क्या बोलता है? Which of the following represents the female gametophyte? इनमें से कौन female gametophyte को represent करता है? A. ovule, B. embryo sac, C. nucellus, D. endosperm. This is actually NEET 2024 Chhajjar, ठीक है। इनमें से कौन सा फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है? कैन यू टेल मी दैट? ठीक है, कौन फीमेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है? द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स अ नो ब्रेनर, इट्स एन एम्ब्रियो सैक, ठीक है। एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट द फीमेल गेमेटोफाइट। और मेल गेमेटोफाइट क्या है बच्चा? अगर मैं आपसे पूछूं, मेल गेमेटोफाइट है हमारा पॉलन ग्रेन, राइट। ओव्यूल क्या है बच्चा? ओव्यूल है मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, जिसके अंदर जो मेगास्पोर्स है वो बनेंगे। एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गेमेटोफाइट। न्यूसेलस, one of the cells of nucellus only differentiate as a megaspore mother cell. जो एंडोस्पर्म से न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। So I hope that makes sense. Okay, moving on to the next question. Question number 5 again from NEET 2024 Chhajjar. Question number 5 बोलता है the junction between ovule and funicle is represented by A. nucellus, B. integument, C. chalaza, D. hilum. What do you think बच्चे? ठीक है, तो देखो अगर मान लो ये हमारा ओव्यूल है, ठीक है, एक मिनट जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, अगर मानो ये ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल ना एक स्टॉक की मदद से, एक डंडी की मदद से जिसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं, अटैच होता है प्लेसेंटा से, ठीक है। इट्स वेरी सिमिलर टू, जैसे फॉर एग्जांपल हम बेबी है, ठीक है, अगर वी आर द बेबीज, ठीक है, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, बेबी के पास होती है अम्बिलिकल कॉर्ड। बेबी अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है,
बेबी अम्बिलिकल ऐसे जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल की वजह से प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जिस पॉइंट पे ये अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे से जुड़ी होती है, ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, इस पॉइंट को मैं क्या बोलते हैं? अरे ये क्यों काम नहीं कर रहा? जस्ट अ सेकंड बचे। अरे व्हाट हैपेंड? द टच इज नॉट वर्किंग फॉर सम रीजन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ऑटो सेलेक्ट, अरे ठीक है। तो एक्चुअली में देखो, जो अम्बिलिकल कॉर्ड जिस पॉइंट पे बच्चे से अटैच होती है वो क्या होती है? वो हमारी नाभि होती है, जिसको मैं अपनी नेवल बोलते हैं ना। हमारी नाभि जो होती है, हमारी नाभि के पॉइंट पे एक्चुअली अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो हम अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होते हैं प्लेसेंटा से। तो अब नाभि को देखते हैं, नाभि कितना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अलग पता चल जाता है ना, एक प्रोमिनेंट की यहाँ पे एक अलग से नजर आता है। तो ऐसे ही क्यूरिकल जिस पॉइंट पे बॉडी ऑफ द ओव्यूल से अटैच होती है, वहाँ एक स्कार टिश्यू बन जाता है, जिसको हम हाइलम बोलते हैं। हाइलम इज नॉट अ स्ट्रक्चर, इट्स जस्ट अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. Hilum is just a point of attachment between the ovule and the funicle. So option number 4 becomes the correct answer here. Okay, makes perfect sense. Okay. Moving further. Next question है question number 6. Again, interesting question. Question number 6 है NEET 2024 से. Question number 6 बोलता है identify the correct set of statements. आपको correct set of statements को identify करना है and then mark the correct answer. ठीक है. पहला वाला है फ्लावर्स ऑफ वैलिसनेरिया कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर. अब देखो, पहली बात तो जो वैलिसनेरिया होता है उसमें हाइड्रोफिली देखने को मिलती है, यानी वाटर पॉलिनेशन. और वाटर जो होता है नॉन लाइक एबायोटिक एजेंट है. एबायोटिक एजेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एबायोटिक एजेंट्स को थोड़ी अट्रैक्ट करते हैं. विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की खासियत यही है कि वो ना ज्यादा शोई, कलरफुल, नेक्टर प्रोड्यूसिंग, ओडरलेस, ये सारे होते हैं. ठीक है. सो फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर्स वैलिसनेरिया के, वो कलरफुल और प्रोड्यूस नेक्टर है. तो ये तो गलत हो जाएगा, एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ये तो बिल्कुल गलत है. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी पे. स्टेटमेंट नंबर बी बोलता है फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. दैट्स ट्रू. वाटर लिली की अगर मैं बात करूँ, वाटर लिली हो गया अपना, लोटस हो गया, ये हमारा ये हो गया, अरे आइकॉर्निया हो गया, पिस्टिया हो गया, ये सारे के सारे हैं तो हमारे हाइड्रोफाइट यानी एक्वेटिक एंजियोस्पर्म, बट दे नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर. दे आइदर पॉलिनेटेड बाय विंड, अनीमोफिली, और आइदर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स, एंटोमोफिली. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी पे. क्वेश्चन नंबर सी बोलता है in most of the water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. Yeah, that's true. ज्यादातर water pollinated species में आप देखोगे, वैलिसनेरिया हो गया, जोस्टेरा हो गया, हाइड्रोला हो गया, इन सब में इनके जो pollen grains होते हैं ना, pollen grains के अराउंड बच्चे एक एक्चुअली में म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है. एंड वो म्यूसिलेज की कवरिंग इन्हें वेट नहीं होने देती, इन्हें गीला नहीं होने देती, मेक्स देम अनवेटेबल, राइट. सो यस, ज्यादातर जो वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज होती है ना, pollen grains are protected from wetting. That's true. सी भी करेक्ट है. नेक्स्ट आ जाओ डी पे. डी वाली जो स्टेटमेंट है वो बोलती है pollen grains of some hydrophytes are long in river like. That's true. Some, not all. ठीक है. कुछ हाइड्रोफाइट्स, जैसे कि आपको हमने जोस्टेरा का, एनसीईआरटी में जोस्टेरा का एग्जांपल दे रखा है. जोस्टेरा जो हाइपोहाइड्रोफिली शो करता है, उसमें जो pollen grains होते हैं ना, वैसे लंबे लंबे रिबन लाइक होते हैं. ठीक है. लॉन्ग इन रिबन लाइक. दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है. आ जाओ लास्ट वाली स्टेटमेंट पे, ऑप्शन नंबर ई. स्टेटमेंट नंबर ई क्या बोलते हैं? सब हाइड्रोफाइट pollen grains are carried passively inside water. हाँ, कुछ हाइड्रोफाइट्स के केस में, कुछ एक्वेटिक एंजियोस्पर्म के केस में जो pollen grains है, they carried passively by water currents. वाटर करेंट्स के थ्रू ही बहते 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 वो अल्टीमेटली अपनी फीमेल पार्ट तक चले जाते हैं. That's absolutely true, right? So B, C, D, E are correct statement, and B, C, D, E only option number 3 becomes the correct answer here. सबको समझ में आ गया? I hope that's crystal clear to everyone. Moving on to the next question. Next question है हमारे पास question number 7. Identify the correct description about the given figure. ये जो फिगर है, अगेन ये क्वेश्चन है NEET 2024 का. अब एक्चुअली में ये जो फिगर है ना, पहली बात तो चलो मैं पढ़ लेती हूँ फर्स्ट. ठीक है. वाटर इज इट वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स showing stamens and mucilage covering? Is it clistogamous flowers showing autogamy? Is it compact inflorescence showing complete autogamy? Is it wind pollinated plant and inflorescence showing flowers with well exposed stamens? So what do you think बच्चे is the correct answer here? बताओ मुझे इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा. तो अगर आप ध्यान से देखो, पहली बात तो ये वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर नहीं है. ठीक है बच्चे. शोइंग स्टेमन विद म्यूसिलेजनस कवरिंग, कहाँ पे आपको यहाँ पे स्टेमन जैसे म्यूसिलेज कवरिंग के साथ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना. ठीक है. नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स है. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होता है फ्लावर्स विच नेवर ब्लूम, जिसमें एंथीसिस एब्सेंट होता है, वो फ्लावर्स में कभी खिलते ही नहीं है. तो क्या यहाँ पे क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स दिख रहे हैं जो ऑटोगेमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन दिखा रहे हैं? ना ना ना. क्या यहाँ पे कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है? इन्फ्लोरेसेंस जरूर नजर आ रही है, बट इज दैट शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी? कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है, कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस है. इन्फ्लोरेसेंस नजर आ रही गुच्छे में प्रेजेंट है. मेल फ्लावर्स की इन्फ्लोरेसेंस है. मैंने एक और हिंट दे दी. दिस इज एन इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेल फ्लावर्स, यानी ग्रुप ऑफ मेल फ्लावर्स व्हिच आर बंडल्ड टुगेदर, बट आर दे शोइंग कंप्लीट ऑटोगेमी? क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे. ना ना ना. लास्ट आ जाओ, ये विंड पॉलिनेटेड प्लांट है. ये wind pollinated plant inflorescence which is showing flowers with well exposed stamens. In fact, to be more precise with you, ये male inflorescence होती है कॉर्न की. कॉर्न यानी मेज की मेल inflorescence होती है. ठीक है. दिस इज द मेल inflorescence यानी ग्रुप ऑफ मेल फ्लावर्स. ठीक है. और ये जो आपको लंबे लंबे नजर आ रहे हैं ना, these are the well exposed stamens. ठीक है. These are the well exposed stamens. और stamens इतने well exposed क्यों होते हैं? ये well exposed इसलिए होते हैं so that क्योंकि wind pollination होगी, wind pollinated plant होता है, मेज जो होता है भुट्टा विंड पॉलिनेटेड प्लांट होता है, तो उसमें स्टेमन्स इतने हेयरी और फेदरी क्यों बन जाते हैं? सो दैट दे कैन डिस्पर्स द पॉलन ग्रेन, हवा में आराम से पॉलन ग्रेन्स को रिलीज कर सके, राइट. सो यस, द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4.
What would be the correct answer? Option number 4. This is a wind pollinated plant in fluorescence showing flowers with well exposed stamens. Option number 4 becomes the correct answer here. Okay, let's move on to the next question. Question number 8 है, which is from NEET 2023 Manipur. In angiosperm, correct sequence of events leading to the formation of female gametophyte in the ovule. Correct sequence of events बच्चे आपको बताने. Choose the correct answer from the options given below. आप correct sequence of events बताने, ठीक है. सबसे पहले देखो क्या होता है फीमेल gametophyte में. सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले okay, let me actually open a blank slide and explain it to you. देखो if I could show it to you, let me open that PDF if I have it. Okay. अब देखो सबसे पहले क्या होता है ना, अब सबसे पहले देखो ऐसा कुछ होता है कि मान लो अगर ये आपका वो है ओव्यूल, इफ दिस इज द ओव्यूल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. ओव्यूल में अगर आप ध्यान से देखो ये होता है बच्चा, ये जो मास ऑफ होमोजेनियस टिश्यू दिख रहा है ना, दिस इज द न्यूसेलस. अब न्यूसेलस का ही एक सेल होता है ना जो आगे जाके डिफरेंशिएट हो जाता है इनटू मेगास्पोर मदर सेल. न्यूसेलस का ही एक सेल डिफरेंशिएट हो जाता है आगे जाके किसमें, मेगास्पोर मदर सेल में, ठीक है. अब इस मेगास्पोर मदर सेल में आप देखोगे तो मियोसिस होता है, ठीक है. मियोसिस 1 के बाद 2 सेल, तो मियोसिस 2 के बाद 4 सेल्स, ठीक है. तो अल्टीमेटली मियोसिस 1 प्लस मियोसिस 2 एक मियोसिस कहलाता है. तो मेगास्पोर मदर सेल जो होता है विच इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसमें मियोसिस जब होता है तो मियोसिस से अल्टीमेटली 4 मेगास्पोर्स बनते हैं, जैसे कि आपको नजर आ रहा है. थ्री आउट ऑफ दीज मेगा 4 मेगास्पोर्स डीजेनरेट. तो अगर मान लो ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये चिलेजल एंड है, सो द वन फ्रॉम द ये जो 3 है चिलेजल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ये डीजेनरेट हो जाते हैं एंड द वन टुवर्ड्स द चिलेजल एंड रिमेन्स फंक्शनल. चिलेजल एंड की तरफ ये फंक्शनल रहता है, ठीक है. और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यही आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो सैक. द फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें 3 माइटोटिक डिविजन होते हैं. एक माइटोटिक डिविजन, तो ये जो तीनों के तीनों माइटोटिक डिविजन है ना, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर में होंगे ये सारे के सारे फ्री न्यूक्लियर है, ठीक है. तो एक न्यूक्लियस डिवाइड हुआ 2 में, सेकंड माइटोटिक डिवीजन हुआ 2 से 4 और थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ तो अल्टीमेटली 8 सेल 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर आपको दिखेगा. दिस इज द मैच्योर फीमेल एम्ब्रियो सैक, ठीक है, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है. फिर ये जो एक्चुअली 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है अरेंज होता जाता है, ठीक है. एक न्यूक्लियर इस पोल से सेंटर में आता है, एक न्यूक्लियर इस पोल से सेंटर में आता है, टुगेदर दे फॉर्म द पोलर न्यूक्लियर इन द सेंटर. 3 सेल्स चिलेजल एंड की तरफ रह जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल एंड 3 सेल्स रिमेन टुवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड जिनको मैं बोलती हूँ एग पैराफिस, ठीक है. सो दिस इज प्रीटी मच हाउ इट टेक्स प्लेस. नाउ लेट्स एक्चुअली लेबल एज एनसीईआरटी में करते हैं. सबसे पहले क्या होता है एनसीईआरटी में मार्क करता है, सबसे पहले होता है मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल. तो सबसे पहले सेल्स का एक सेल डिफरेंशिएट करता है मेगास्पोर मदर सेल, उसमें मियोटिक डिवीजन होते हैं. मियोटिक डिवीजन हुए 4 मेगास्पोर्स बने जिसमें 3 डीजेनरेट कर गए. सो फिर डीजनरेशन ऑफ 3 मेगास्पोर्स, तो सबसे पहले सी फिर बी, सी फिर बी एंड ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है. हमें आंसर तो यही मिल गया बट आगे पढ़ते हैं, ठीक है. 3 मेगास्पोर्स डीजेनरेट हो गए, ठीक है. अब जो एक सक्सेसफुल मेगास्पोर है, एक सक्सेसफुल जो फंक्शनल मेगास्पोर है, उसमें क्या होगा, उस मेगास्पोर में 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन होंगे इन द फंक्शनल मेगास्पोर. 3 लगातार फ्री न्यूक्लियर डिविजन होंगे उस फंक्शनल मेगास्पोर में. और जैसे ही 3 न्यूक्लियर डिविजन होंगे 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनेगा. उन 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में 3 न्यूक्लियर विल मूव टुवर्ड्स ईच पोल, ठीक है. 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर में 3 न्यूक्लियर इस पोल की तरफ, 3 न्यूक्लियर इस पोल की तरफ, एक 2 न्यूक्लियर जो है वो सेंटर में रह जाएंगे, ठीक है. एंड या अल्टीमेटली जैसे ही होगा दिस इज रेफर्ड एज फॉर्मेशन. और फिर अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे न्यूक्लियर वॉल्स पे चलेगा 2 सेंटर में रहेंगे, फिर इनके अराउंड वॉल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, फॉर्मेशन ऑफ वॉल रिजल्टिंग इन 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक. सो ई ऑप्शन नंबर ई बिकम्स ओके. तो ऑप्शन नंबर डी बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई होप ये सबको समझ आया होगा, यू नो हाउ डू यू गो अबाउट. मैंने डायग्राम से भी शो करने की कोशिश की, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज फ्रॉम नीट 2023 मणिपुर. क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे क्या बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन द वायबल फॉर मंथ्स, ठीक है. पॉलन वायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, द टाइम पीरियड अप टू व्हिच द पॉलन ग्रेन इज केपेबल ऑफ फॉलिंग पॉलन ट्यूब, राइट. कितने टाइम तक पॉलन ग्रेन, ऐसा नहीं हमेशा के लिए वायबल रहेगा, वायबल होता है कितने टाइम पीरियड तक पॉलन ग्रेन के पास ये क्षमता होगी कि वो जब स्टिग्मा पे गिरेगा तो अल्टीमेटली पॉलन ट्यूब बना लेगा, यानी जर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है. सो दिस टाइम पीरियड वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज. किसी किसी में बहुत फ्यू मंथ्स, किसी किसी में फ्यू डेज से लेके, किसी किसी में फ्यू आवर्स, फ्यू मिनट्स से लेके इट वेरीज ऑल द वे अप टू मंथ्स किसी किसी में. तो जो आप देखोगे पॉलन ग्रेन या फिर सीड वाइब कई कई सालों तक रहता है किसी किसी में तो वाइबिलिटी, ठीक है. बट एनसीईआरटी में सिर्फ पॉलन ग्रेन्स के विद रिस्पेक्ट टू 2 ही मतलब चीजें बता रखी हैं कि एक तो आपको बता रखा है ग्रामिनी फैमिली या पोएसी फैमिली, ठीक है. ग्रामिनी या पोएसी फैमिली, जो सीरियल्स की फैमिली, ठीक है, जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स है वो सिर्फ 30 मिनट्स तक वाइबल रहते हैं. मेज, व्हीट वगैरह हो गया, राइस, इन सब में पॉलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल ओनली फॉर अप टू 30 मिनट्स, ठीक है. वहीं पे फिर 3 फैमिलीज दे रखी है, पॉलन ग्रेन्स रिमेन वाइबल फॉर मंथ्स, ठीक है. तो वाइबल फॉर मंथ्स वो 3 फैमिलीज है LSR. मैंने उसको याद रखा है FLS and R. LSR stands for Lady Shri Ram College. Lady Shri Ram College, one of the very famous colleges in Delhi University, ठीक है. जिसकी कट ऑफ भी बहुत अच्छी जाती है LSR की, ठीक है. तो L stands for Leguminosity, S stands for Solanaceae, R stands for Rosaceae. Which L does not stand for Liliaceae, ध्यान रखना है. तो ये भी तो डिफरेंस पता होना चाहिए ना. Leguminaceae, Solanaceae and Rosaceae. Option number D4 becomes the correct answer here. ठीक बच्चे, let's move on to the next question now. Next question आ जाएगा question number 10. I'm so sorry, I don't know. From the morning my just
back is aching like anything. I mean, I'm just literally, I don't know. I only know how I'm taking this class, but the commitment is what keeps me going. Consistency is the key, right? So yeah, so I'm showing up and I expect all of you to show up as well, right? Showing up is very, very important no matter, even if, you are not able to, be 100% of yourself, but at least just show up, show up. Showing up makes a lot of difference, right? You already get ahead, of 90% of your competition just by showing up, okay? Coming back to question number 10. Question number 10 is from NEET 2023 Manipur. Question number 10 बोलता है transfer of pollen grains from the anther to stigma of another flower of the same plant is known as A. Gitonogamy, B. Xenogamy, C. Autogamy, fourth है Clistogamy. ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन बच्चा आप पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रहे हो फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा, बट एंथर से स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दूसरा फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर से दूसरा फ्लावर, बट दिस अनदर फ्लावर इज ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, जैसे मान लो इसका ये फूल है, ठीक है, ये इसका दूसरा फूल है, ठीक है, वी आर ट्रांसफरिंग द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो दो डिफरेंट फ्लावर्स है, but both the flowers are of the same plant. This is known as what? This is known as gitonogamy. Option number 1 becomes the correct answer. Gitonogamy जो होता है बच्चे, फंक्शनली तो आप देखोगे या इकोलॉजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट अगर आप जेनेटिकली देखोगे तो जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस. ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11 नाउ.
Alright, so now let's move on to question number 16. Okay, so we have an extra page here. Let me just quickly delete this one. Just a moment. Alright, so now we have 15 and then we have 16. Okay, question number 16 बच्चे बोलता है identify the incorrect statement related to pollination. Incorrect statement बतानी है आपको related to pollination. This was also NEET 2022. Moths and butterflies are the two most dominant pollinating agents among insects. ठीक है, pollination by water is quite rare in flowering plants. Pollination by wind is more common amongst the abiotic pollination. Flowers produce foul odor to attract flies and beetles to get pollinated. Now you have to select the incorrect statement. अब पहली बात है, moths and butterflies are the most dominant pollinating agents among insects में सबसे ज़्यादा dominating जो pollinating agents है, सबसे ज़्यादा dominant pollinating agents है bees, सबसे ज़्यादा pollination करते हैं. ठीक है, तो यही incorrect statement है and hence this becomes the correct answer. Next है pollination by wind, water is quite rare. Yes, pollination by water जो है वो काफ़ी रेयर होती है फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म में एंड इट्स लिमिटेड टू ओनली 30 जेनेरा ऑफ मोनोकॉट्स. ठीक है, नेक्स्ट है pollination by wind is more common amongst abiotic pollination. Abiotic agents में wind और water है जिसमें wind ज़्यादा कॉमन है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Flowers produce foul odor to attract flies and beetles to get pollinated. वो pollination जिसमें actually flies and beetles are required. The flies and beetles are the pollinating agents. Those flowers actually produce foul odor. वो गंदी smell produce करते हैं. ये हमारा Amorphophallus and beetle है. ठीक है, Amorphophallus is pollinated by beetles. Amorphophallus produces a foul smell to attract the beetles, right? So ये भी correct है. So incorrect बताना था. Option number 1 becomes the correct answer. Next आ जाओ question number 17 from NEET 2022. Given below are two statements. Those statements they have to tell. Okay. Statement number 1 है क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स यानी क्लोज फ्लावर्स होते हैं जो कभी नहीं खिलते. ठीक है, वो फूल जो कभी नहीं खिलते वो इनवेरिएबली मतलब विदाउट एनी वेरिएशन. क्या वो हमेशा ऑटोगेमस होते हैं? हाँ, तो फूल कभी खिलेंगे नहीं, उसमें हमेशा ऑटोगेमी ही होगी ना, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगी. सो दिस इज तो एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट आ जाओ. क्लिस्टोगेमी इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. यस, क्लिस्टोगेमी के कई सारे एडवांटेजेस. अश्योर्ड सीड सेट है, इट्स चीपर टू प्लांट्स को सस्ता पड़ता है बिकॉज कोई फ्लोरल रिवॉर्ड तैयार नहीं करना. बट डिसएडवांटेजेस ये हैं कि देर आर नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन. देर आर नो चांसेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की कोई चांसेस नहीं है. क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा. दैट माइट लीड टू लेसर जेनेटिक वेरिएबिलिटी. कोई जेनेटिक वेरिएशन ही नहीं आएगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, statement 1 is correct. Both statement 1 and 2 are correct. Option number 2 becomes the correct answer here. Moving on to the next question. Next question is question number 18. It's from NEET 2021. Question number 18 बोलता है in some members of which of the following pairs of families pollen grains retain their viability for months after release? Is it A, Poaceae solanaceae? Is it B, Rosaceae leguminosae? Is it C, Poaceae rosaceae? Or is it D, Poaceae leguminosae? इन सम मेम्बर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज. कुछ मेम्बर्स होते हैं, कुछ मेम्बर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. कुछ मेम्बर्स होते हैं कौन सी फैमिली के हैं जिसमें पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी महीनों तक रहती है. यानी पॉलन ग्रेन महीनों तक वाइबल रहता है, यानी महीनों तक उसके बाद ये एबिलिटी होती है कि वो जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बना सकता है. सो एनसीईआरटी में 3 फैमिलीज दे रखी है. LSR लेडी श्री राम से याद कराया मैंने. लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी. लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी और रोजेसी. Option number 2 would be the correct answer. Okay, option number 2 becomes the correct answer here. Moving on to the next question. Question number 19. It's from NEET 2021. Question number 19 बोलता है the term used for the transfer of pollen grains from the anther of one plant to the stigma of a different plant which during pollination brings genetically different types of pollen grains to stigma is. देखो, you're transferring the pollen grains transfer हो रहे हैं. 1 second. ठीक है, इसको ध्यान से समझो. You're transferring the pollen grains from anther of one plant. एक प्लांट के एंथर से टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, दूसरे प्लांट पे. तो फ्लावर ही डिफरेंट नहीं है, प्लांट भी डिफरेंट है, राइट. सो फ्रॉम द एंथर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट. ठीक है, और दैट्स नॉट इनफ ऑफ अ हिंट. यहीं से हमें पता चल गया जब 2 डिफरेंट प्लांट्स इन्वॉल्व हैं तो ये जेनोगेमी ही होगा. ठीक है, एक और हिंट के लिए उन्होंने बोला कि यही इकलौती ऐसी पॉलिनेशन होती है. दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन ड्यूरिंग विच देर आर जेनेटिकली विच ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन. ऑफ कोर्स 2 डिफरेंट प्लांट्स हैं तो ऑफकोर्स दोनों के जेनेटिक मेकअप में कुछ तो वेरिएशन होगा. ये इकलौता केस है तो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स आते हैं स्टिग्मा के पास. This is a classic case of xenogamy. Option number 3 becomes the correct answer. Okay. Moving on to the next one, which is question number 20. Again from NEET 2021. जो बोलता है typical angiosperm embryo sac at maturity is 7 nucleate 7 cell, 8 nucleate 8 cell, 8 nucleate 7 cell, 7 nucleate 8 cell. What do you think which is the correct answer here? एक typical angiosperm embryo sac की अगर मैं बात करूँ maturity के टाइम पे, ठीक है, उसके पास
8 न्यूक्लियस और 7 सेल होते हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लियस की बात करूँ तो देखो 3 न्यूक्लिया एट चलेजल एंड 3 न्यूक्लिया एट द माइक्रोपाइलर एंड 2 न्यूक्लिया एट द सेंटर, ठीक है। फिर इवेंचुअली वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये 3 सेल्स बन जाते हैं, 3 एंटीपोडल सेल्स एट द चलेजल एंड, ठीक है, 3 सेल्स एट द माइक्रोपाइलर एंड जिनको हम एगापैरेक्टस बोलते हैं, और जो ये लास्ट बीच में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल बनता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखो, मुझे न्यूक्लिया बताओ, न्यूक्लिया तो 8 हैं बट सेल्स कितने हैं? 7। दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो सैक। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस। Moving on to the next one, which is question number 21. It's again from NEET 2020 COVID re-exam. Which of the following is incorrect for wind pollinated plants? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है for wind pollinated plants? Wind pollinated plants के पास well exposed stamens and stigma होते हैं, that's correct. Many ovules in each ovary, कई सारे ovules होते हैं each ovary में। थर्ड है flowers are small and not brightly colored, और फोर्थ है pollen grains are light and non-sticky। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत, ठीक है। गलत बतानी है हमें, तो येस विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सपोज स्टेमन्स और स्टिग्मा होते हैं, वो तो एकदम सही है। कई सारे ओव्यूल्स होते हैं ईच ओवरी में, नहीं। इनफैक्ट जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनका एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सा फीचर है कि यूजुअली दे हैव 1 ओव्यूल, दे विल ओनली हैव 1 सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ठीक है। तो यही गलत है, एंड हेंस दिस बिकम्स द करेक्ट आंसर। जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, दे नॉट ब्राइटली कलर्ड, ठीक है, बिकॉज उन्हें किसी को अट्रैक्ट थोड़ी करना है, विंड को अट्रैक्ट थोड़ी करना पड़ता है, ठीक है। विच इज़ वाई द फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, नॉट वेरी शोई, ठीक है, नॉट वेरी ब्राइटली कलर्ड, स्मॉल। और जो उनके पॉलन ग्रेन्स होते हैं विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के, वो काफ़ी हल्के होते हैं क्योंकि उन्हें हवा के थ्रू उड़ के जाना है ना, तो दे आर वेरी वेरी लाइट एंड दे नॉन स्टिकी। ये भी ठीक है, ये सारी ठीक है, हमें इनकरेक्ट बतानी थी। ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे। दिस इज फ्रॉम NEET 2020। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय ए वाटर करेंट्स ओनली, बी विंड एंड वाटर, सी इंसेक्ट्स एंड वाटर, एंड फोर्थ है इंसेक्ट्स एंड विंड। तो बच्चे वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली की अगर मैं बात करूँ तो इनमें पॉलिनेशन ऑल्सो ये एक्वेटिक प्लांट्स है, वाटर हाइसिंथ विच इज़ आइकॉर्निया एंड वाटर लिली, इनमें पॉलिनेशन एक्चुअली होती है बाय इंसेक्ट्स एंड विंड, ठीक है। या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन होती है एंटोमोफिली, या विंड पॉलिनेशन होती है एनीमोफिली। दे आर हाइड्रोफाइट्स विच डू नॉट शो हाइड्रोफिली, ठीक है, उसका केस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 इज फ्रॉम NEET 2020। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चे बोलता है बॉडी ऑफ द ओव्यूल, body of the ovule is fused with the funicle at A micropyle, B nucellus, C chyleza और D hilum, ठीक है। जो बॉडी होती है ओव्यूल की, मान लो अगर ये ओव्यूल है, लेट्स से ओव्यूल है, ओव्यूल की बॉडी, ठीक है, ओव्यूल की बॉडी फ्यूनिकल से जिस पॉइंट पे फ्यूज होती है उस पॉइंट को क्या बोलता है? दैट्स कॉल्ड एज हाइलम। द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ ओव्यूल विद द फ्यूनिकल इज रेफर्ड टू एज हाइलम। ऑप्शन नंबर 4 becomes the correct answer. Moving on to the next question. Next question है question number 24. It's from NEET 2019 Orissa. Question number 24 बच्चे क्या पूछता है? What type of pollination takes place in Vallisneria? कौन सी तरीके का पॉलिनेशन होता है Vallisneria में? Vallisneria में एक्चुअली होती है तो more precise एपीहाइड्रोफिली, यानी पॉलिनेशन अकर्स इन सबमर्ज कंडीशंस बाय वाटर। ना पॉलिनेशन सबमर्ज कंडीशन में होती नहीं है, मैंने आपको बताया एपीहाइड्रोफिली होती है, ठीक है। दूसरा आ गया पॉलिनेशन फ्लावर्स इमर्ज अबव द सर्फेस ऑफ वाटर एंड पॉलिनेशन अकर्स बाय इंसेक्ट। क्या पर दोनों के दोनों फूल जो होते हैं वाटर की सर्फेस पे आ जाते हैं और फिर इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होती है? नहीं, वैलिसनेरिया में हाइड्रोफिली ही होती है, इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट स्टेप के पास फ्लावर्स इमर्ज अबव द वाटर सर्फेस एंड पॉलन इज कैरीड बाय द विंड। फ्लावर्स दोनों के दोनों वाटर की सर्फेस पे आ जाते हैं और पॉलिनेशन बाय विंड होती है ना विंड के थ्रू भी नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है? मेल फ्लावर्स आर कैरीड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट द सर्फेस ऑफ वाटर। तो फीमेल फ्लावर्स क्या करते हैं? फ्लावर की जो पेडिसल होती है ना, पेडिसल उसे वो इलोंगेट करके जो फीमेल फ्लावर्स है ना, दे रीच द सर्फेस ऑफ वाटर, और जो मेल फ्लावर्स होते हैं ना, मेल फ्लावर्स अल्टीमेटली वो डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। मेल फ्लावर्स जो होते हैं अल्टीमेटली डिटैच हो जाते हैं पेरेंट प्लांट से, ठीक है। एंड दे अल्टीमेटली वाटर करंट के थ्रू पैसिवली दे फ्लोट एंड रीच द सर्फेस ऑफ वाटर। फिर वाटर सर्फेस पे जाके दे रिलीज द पॉलन ग्रेन्स एंड द पॉलन ग्रेन्स अल्टीमेटली कैरिड पैसिवली, वाटर जो पॉलन ग्रेन्स वो रिलीज करते हैं पैसिवली जाते हैं बाय द वाटर करंट एंड दे अल्टीमेटली रीच द फीमेल फ्लावर विच इज प्रेजेंट ऑन द वाटर सर्फेस। दैट्स हाउ इट टेक्स प्लेस। द मेल फ्लावर्स आर कैरिड बाय वाटर करंट्स टू फीमेल फ्लावर्स एट द सर्फेस ऑफ वाटर। ये समझ में आ गया? दिस इज फ्रॉम NEET 2019। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 है NEET 2019 अगेन उड़ीसा से। विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इन एंजियोस्पर्म? एम्ब्रियो सैक सबसे कॉमन तरीके का एम्ब्रियो सैक बताओ, सबसे कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बनाओ एंजियोस्पर्म में। टेट्रास्पोरिक विद 1 माइटोटिक स्टेज ऑफ डिविजन, सेकंड इज मोनोस्पोरिक विद 3 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन, थर्ड है मोनोस्पोरिक विद 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन, और फोर्थ है बाइस्पोरिक विद 2 सीक्वेंशियल माइटोटिक डिविजन। तो आप मुझे बता सकते हो सबसे कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कौन सा होता है एंजियोस्पर्म में? देखो एंजियोस्पर्म में होता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है जब 4 मेगास्पोर्स होते हैं ना, 4 मेगास्पोर्स, ठीक है, जिन 4 में से जो 3 होते हैं टुवर्ड द
स्पोरोपाइलर एंड वो तो डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली वन टुवर्ड्स द चिलेजल एंड रिमेन्स फंक्शनल, और इस सिंगल मेगास्पोर से ही अल्टीमेटली आगे जाके एम्ब्रियो सैक बनता है। तो इस तरीके की डेवलपमेंट को मैं बोलती हूँ मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है, और मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में ये सिंगल मेगास्पोर के अंदर 3 माइटोटिक डिविजन होते हैं, 3 बार माइटोसिस होती है, तभी तो 8 न्यूक्लिएट कंडीशन आती है, ठीक है। 3 बार सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होती है, सो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर है। सबको समझ में आ गया? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड? नीट 2019 उड़ीसा का अगेन क्वेश्चन है। कौन से केस में बच्चे दोनों ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी प्रिवेंट होते हैं? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, ठीक है। कौन से केस में दोनों ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी प्रिवेंट होती हैं, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन दिस, हाउ डू यू गो अबाउट इट। अब ध्यान से समझना। देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एक फ्लावर है, ये एक मोनोशियस प्लांट है। मैं प्लांट जब मोनोशियस बोलते हैं तो देखो मोनोशियस प्लांट मतलब द प्लांट हैज़ बोथ रिप्रोडक्टिव, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होने। हाउएवर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, यानी मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। तो जो मैंने पिंक से बनाया ये फीमेल फ्लावर हो गया, ठीक है। जो ब्लू से बनाया वो मेल फ्लावर हो गया। सो द सेम प्लांट हैज़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। तो ये क्या हो गया, अब ओवरऑल प्लांट पे तो दोनों रिप्रोडक्टिव प्लांट्स पार्ट्स है, तो प्लांट तो मोनोशियस हो गया, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है। तो ऐसा देखने को बच्चे हमें मिलता है कैस्टर में, ठीक है। कैस्टर में देखने को मिलता है, मेज़ में देखने को मिलता है। वी गेट टू सी दिस इन कैस्टर, मेज़ और वीट में भी, इनफैक्ट कैस्टर, मेज़ और वीट में, ठीक है। हाउएवर जब मैं बात करती हूँ पपाया की, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट पपाया लेट्स से, ठीक है। अगर मैं पपाया की बात करती हूँ ना, तो पपाया में बच्चे यूजुअली क्या होता है, पपाया के केस में हमारे पास मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं पपाया के केस में। बट पपाया के केस में जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है ना, जैसे कि यहाँ पे भी मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है, ठीक है। मेल और फीमेल फ्लावर बट दोनों के दोनों प्रेजेंट तो सेम प्लांट है। पपाया के केस में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर है प्रेजेंट ऑल्सो ऑन डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो पपाया के केस में मेल और फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट भी अलग अलग प्लांट पे होते हैं, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो। तो उस केस में जहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर्स जो है वो प्रेजेंट भी डिफरेंट प्लांट्स पे हों। 1 सेकेंड, देखो 1 मिनट, इसका भी चेंज कर दूँगा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। अब इस पपाया के केस में अब एक प्लांट है जिसपे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है, एज यू कैन क्लियरली सी, एंड देन दूसरा प्लांट है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ना तो ऑटोगेमी हो पाएगी ना गिटोनोगेमी हो पाएगी। ऑटोगेमी के लिए देखो आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए, ऑटोगेमी तो इस केस में ही प्रिवेंट हो रही थी कैस्टर, मेज़ और वीट वाले में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में बाइसेक्सुअल फ्लावर है ही नहीं। फीमेल फ्लावर खुद के साथ कैसे, फीमेल फ्लावर खुद के साथ पॉलिनेशन कर लेगा क्या? नहीं ना। तो इस केस में भी एक्चुअली ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होते हैं, लेकिन गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं हो पाती, क्योंकि गिटोनोगेमी होती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। तो इस केस में आप ऑटोगेमी तो प्रिवेंट कर सकते हो, बट गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं कर सकते। गिटोनोगेमी तो होगी, बट इस वाले केस में जहाँ पे ये डायोशियस कंडीशन है, जहाँ पे मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है, इस केस में ऑटोगेमी भी प्रिवेंटेड है। ऑटोगेमी भी नहीं कर सकते क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। गिटोनोगेमी भी नहीं हो सकती क्योंकि एक प्लांट पे सारे या तो मेल फ्लावर्स हैं या सारे फीमेल फ्लावर्स हैं। हाउएवर यहाँ पे जेनोगेमी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, क्योंकि जेनोगेमी होते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ ऑटोगेमी भी प्रिवेंट हो सकती है और गिटोनोगेमी भी प्रिवेंट हो सकती है। तो करेक्ट आंसर ये वुड बी पपाया, ठीक है। एनसीईआरटी में दे रखा था ये, तो मैंने आपको ये बता भी दिया इन केस फॉर पीपल हु डिडंट नो दिस, ओके। सो द करेक्ट आंसर ये वुड बी पपाया। बाकी वीट, कैस्टर, मेज में तो ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी, गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं होगी, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इसको मैं डिलीट कर दूँ, let me delete this page now, 1 second, and there you go, okay. Next is question number 27. Question number 27 बोलता है which of the following statements regarding post fertilization development in flowering plants is incorrect? इनमें से कौन सी statement regarding post fertilization development के बारे में गलत है? ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक ही गलत है। ओव्यूल्स डू नॉट डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। मैं इनकरेक्ट बताती हूँ। ओव्यूल्स फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाते हैं सीड में, ठीक है। ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, दैट्स करेक्ट। जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, दैट्स करेक्ट। सेंट्रल सेल जो होता है, सेंटर में जो सेल होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, वो डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म में, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट नहीं था? पहला वाला, जहाँ इन्होंने बोला ओव्यूल डेवलप होता है एम्ब्रियो सैक में, ना, ओव्यूल डेवलप होता है सीड में। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2019. Moving on to the next question now. Next question है question number 28, again from NEET 2018. Question number 28 बच्चे बोलता है which of the following has proved helpful in preserving pollens as fossils? Which of the following has proved helpful in preserving pollens as fossils? A. pollen kit, B. cellulosic enzyme, third is oil content, fourth is sporopollen. इनमें से किसकी मदद से आप pollens को preserve कर पाए हो as fossils? All thanks to sporopollen, ठीक है। sporopollen is the organic material which forms exine, ठीक है। exine जो outermost covering होती है sporopollen की बनी होती है, और sporopollen is the most resistant organic material which has been known, ठीक है। तो इसी की वजह से हम pollens को preserve कर पाते हैं as fossils. Option number 4 becomes the correct answer here.
नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29. Question number 29 is from 2018. One second, need 2018. Question number 29 बोलता है which one of the following plants show a very close relation with a species of moth when none of the two can complete their life cycles without each other? A. Hydrilla, B. Yucca, C. Banana, fourth is Viola. ठीक है, तो इनमें से कौन से केस में, इनमें से कौन से प्लांट्स हैं जिनका बहुत ही करीबी रिश्ता है, यू नो, विच हैव अ वेरी वेरी क्लोज एंड प्रॉक्सिमल रिलेशनशिप, विच हैव अ वेरी क्लोज एंड प्रॉक्सिमल रिलेशनशिप विद द स्पीशीज़ ऑफ मॉथ. ठीक है, तो उनमें इनमें से कौन सा प्लांट है? ठीक है, और ये दोनों के दोनों दे कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल्स विदाउट ईच अदर. सो यूका फ्लावर जो एक वाइट कलर का फ्लावर होता है, एंड प्रोनिवा मॉथ. यूका फ्लावर और प्रोनिवा मॉथ के बीच में एक ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते. दे हैव इवॉल्व देमसेल्व्स टुगेदर इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन. दोनों इवॉल्व भी साथ ही हुए हैं. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 30 पे. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of -120 degrees Celsius, -80 degrees Celsius, -190 degrees Celsius और -160 degrees Celsius. This was आज नीट 2018. तो pollen grains को आप कई सालों तक स्टोर कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन में. एट वॉट टेम्परेचर? एट अ टेम्परेचर ऑफ -196 degrees Celsius. आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे. नीट 2017. Flowers which have a single ovule in the ovary and they are packed into inflorescence are usually pollinated by A, B, wind, C, bat और D, water. ठीक है, तो वो फ्लावर्स जिनकी ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है, वो फ्लावर्स जिनकी ओवरी में एक सिंगल ओव्यूल होता है, और वो फ्लावर्स जो अक्सर दे आर ऐसे कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. दे आर यूजली पॉलिनेटेड बाय विंड. ठीक है, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में एक सिंगल ओव्यूल होता है ओवरी में, और इनके फ्लावर्स जो यूजुअली होते हैं ना, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स बहुत ज़्यादा बड़े और ब्राइटली कलर्ड नहीं होते. दे आर वेरी यूजली स्मॉल इन साइज और कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस. आई होप दैट मेक्स मोर सेंस. ओके, दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 पे. ओके, लेट्स मूव ऑन टू 31 नाउ. 1 second. 31, सॉरी 31 तो वी हैव ऑलरेडी डन. नो 32. अरे यार, बीच में ब्लैंक पेजेस कैसे रह गए? ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32 नाउ बच्चे. क्वेश्चन नंबर 32 इज फ्रॉम नीट 2017. क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू ए एंडोस्पर्म, बी एम्ब्रियो सैक, सी एम्ब्रियो, फोर्थ ओव्यूल. तो एक फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके किसमें डेवलप कर जाता है? फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो सैक. फंक्शनल मेगास्पोर आगे जाके एम्ब्रियो सैक विच इज द फीमेल गेमेटोफाइट में डेवलप कर जाता है. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 विच इज फ्रॉम नीट 2017 अगेन. अ डायोशियस फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट्स. एक डायोशियस प्लांट जैसे कि पपाया का होता है. डायोशियस प्लांट कौन सा होता है? यानी मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग. यानी एक प्लांट जिस पर सिर्फ मेल फ्लावर्स हैं, एक प्लांट जिस पर सिर्फ मेल फ्लावर्स प्रेजेंट है, और दूसरा प्लांट जिस पर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है. ठीक है, दूसरा प्लांट जिस पर सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट है. तो अगर एक डायोशियस प्लांट होगा तो इस पर ना तो ऑटोगेमी होगी, ठीक है, ना गिटोनोगेमी हो सकती है, इस पर सिर्फ जेनोगेमी पॉसिबल है. सो एक डायोशियस प्लांट जो होगा विच इट विल प्रिवेंट बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी. ऑप्शन नंबर 8 कम्स द करेक्ट आंसर. I hope that's clear to you. Moving on to the next question. Next question is the ovule of an angiosperm is technically equivalent to A. Megasporangium, B. Megasporophyll, C. Megaspore mother cell, fourth is Megaspore. This is also need 2016 phase 2 paper 2. बताओ. ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम? किसकी बात कर रहे हैं? हम बात करें ओव्यूल की. ओव्यूल जो होता है एंजियोस्पर्म में, देखो ओव्यूल के अंदर होता है न्यूसेलस का ही एक सेल आगे जाके बनता है मेगास्पोर मदर सेल, उसी में बनते हैं मेगास्पोर्स. राइट, तो एक तरीके से ओव्यूल का कैविटी है जिसके अंदर स्पोर्स बन रहा है. सो ओव्यूल इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजियम. इनफैक्ट मोर प्रिसाइज इट्स इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. उसके अराउंड इंटेग्यूमेंट्स भी होते हैं ना, इंटेग्यूमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. आई होप दैट मेक्स मोर सेंस नाउ. क्वेश्चन नंबर 35 पे आता है मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, दिस इज फ्रॉम नीट 2016 अगेन. मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स में ए एग हैज़ अ फिलीफॉर्म apparatus. नो, एग के पास थोड़ी होता है फिलीफॉर्म apparatus. सिनोजिट्स के पास होता है. सेकंड है देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल सेल्स नहीं होते, 3 ही एंटीपोडल सेल्स होते हैं. थर्ड है रिडक्शन डिविजन अकर्स इन द मेगास्पोर मदर सेल. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. रिडक्शन यानी मेगास्पोर मदर सेल जो एमएमसी होता है, मेगास्पोर मदर सेल में क्या कहते हैं? रिडक्शन यानी मियोसिस होता है, तभी तो मेगास्पोर्स बनते हैं. रिडक्शन डिवीजन ही तो होता है मेगास्पोर मदर सेल में, तभी तो जाके 4 मेगास्पोर्स बनते हैं. इसमें से 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल होता है. तो ये सही है. नेक्स्ट है स्मॉल सेंट्रल सेल इज प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक. स्मॉल सेंट्रल सेल एक लार्ज सेंट्रल सेल, बड़ा सा सेंट्रल सेल प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक में. तो ये भी गलत हो गया है. तो ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 पे. क्वेश्चन नंबर 36 होता है नीट 2016 फेज 2 पेपर. क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली इज ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ ए वाटर, बी इंसेक्ट्स और विंड, थर्ड इज बर्ड्स, फोर्थ इज बैट्स. ठीक है, तो पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ, पॉलिनेशन वाटर हाइसिंथ पे वाटर लिली में, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होता है इट्स ब्रॉट अबाउट बाय द एजेंसी ऑफ इंसेक्ट्स और विंड. ठीक है, और ये दोनों एक्वेटिक हाइड्रोफाइट्स है, बट इनमें जो पॉलिनेशन हो रहा है वाटर के थ्रू नहीं हो रहा है, इट्स बाय इंसेक्ट्स और विंड. एनसीईआरटी क्लियरली बोलता है ये. ठीक है, आइकॉर्निया वाटर लिली में जो पॉलिनेशन होता है, ऑल्दो दे आर प्रेजेंट ऑन इन वाटर, पर ये सर्फेस पे होता है वाटर की, लेकिन इनमें जो पॉलिनेशन होता है वाटर की बजाय
विंड या इंसेक्ट्स की मदद से हो रहा होता है। आई होप दैट मेक्स सेंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 37 पे, फ्रॉम APMT 2016 नीट फेज 1। 37 बोलता है प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच टू द A कनेक्टिव, B प्लेसेंटा, C थैलेमस और पेटल और फोर्थ है आंसर। तो यहाँ पे क्लियरली एनसीईआरटी में बोल रखा है जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, जो प्रॉक्सिमल पास वाला एंड होता है फिलामेंट का, वो या तो अटैच होता है थैलेमस से या अटैच होता है पेटल से। सो ऑप्शन नंबर 3 becomes the correct answer. Moving on to the next question. Next question is question number 38, again from AIPMT 2016 NEET phase 1. Question number 16 बोलता है 38 16 बोल रही है भगवान। Question number 38 from AIPMT 2016 बोलता है which of the following statements is not true, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ध्यान रखना। पहला है एग्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ये तो बात सच है कि एग्जाइन जो होती है स्पोरोपोलिन से बनी होती है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज़ कैन कॉज सिवियर एलर्जीज, हाँ कई सारी स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन जैसे कि पार्थीनियम का हो गया, आइकॉर्निया का हो गया, ठीक है, कीनोपोडियम का हो गया, अमरांथस, सारे जो पॉलन ग्रेन्स है दे कैन कॉज सिवियर एलर्जीज, दैट्स ट्रू। नेक्स्ट आ जाओ, स्टोर्ड पॉलन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, यस। पॉलन ग्रेन्स को आप स्टोर कर सकते हो लिक्विड नाइट्रोजन में और फिर उन पॉलन ग्रेन्स को हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, येस दैट्स ट्रू। टिपीटम हेल्प्स इन डिहीसेंस ऑफ एंथर, नो, इनकरेक्ट ही बताना तो यही इनकरेक्ट है। टिपीटम डज नॉट हेल्प इन डिहीसेंस ऑफ एंथर, जो पहली 3 लेयर्स होती हैं एज पर एनसीईआरटी, तो मोर प्रिसाइज एंडोथीसियम होती है ना, वो हेल्प करती है डिहीसेंस ऑफ एंथर में, बट एनसीईआरटी बोलते हैं तो फर्स्ट 3 लेयर्स विच इज द एपिडर्मिस, the endothelium and the middle layers, all 3 of them which are protective and function, they not just protect the microspores but they also help in dehiscence of anther, ठीक है। तो टिपीटम होना हो कि इनर 3, वो जो आउटर 3 layers है वो होगा। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2015 re-exam. Male gametophyte in angiosperm produces 2 sperms on a vegetative cell. Second है single sperm in a vegetative cell. Third है single sperm in 2 vegetative cells. और fourth है 3 sperms. तो एक मेल गैमेटोफाइट की अगर मैं बात करूँ, मेल गैमेटोफाइट विच इज पॉलन ग्रेन, उसमें क्या क्या होता है, 2 स्पर्म्स यानी 2 मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल। ऑप्शन नंबर 1 becomes द करेक्ट आंसर है। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 नीट 2015 re-exam. In angiosperm, microsporogenesis and megasporogenesis, A occurs in anther, B forms gametes without further division, C involves meiosis और D occurs in ovule। अब देखो बिकॉज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों दे रखा है, तो दोनों के दोनों एंथर में तो नहीं होते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंथर में होता है, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल में होता है, तो ना तो ओनली एंथर ना ओनली ओव्यूल करेक्ट नहीं होगा। दोनों के दोनों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स से आगे जाके फिर जो माइक्रोस्पोर डेवलप होता है पॉलन ग्रेन्स में, उनसे आगे जाके बनता है मेल गैमेट। तो क्या उनसे गैमेट्स बन जाते हैं विदाउट फर्दर डिविजन? तो ये भी गलत है, नहीं, उनमें आगे डिविजन्स होते हैं तब जाके गैमेट्स बनते हैं, राइट, ठीक है। मेगास्पोर की बात करूँ तो मेगास्पोर में 3 माइटोटिक डिविजन्स होंगे, राइट, उनसे जाके अल्टीमेटली फिर एक सेल बनेगा, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों में एक चीज़ जो कॉमन है, चाहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चाहे मेगास्पोरोजेनेसिस हो, दोनों के दोनों मियोसिस हो रहा है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर्स बने, 4 माइक्रोस्पोर्स बने, और मेगास्पोर जिनको MGMC से कहते हैं, मेगास्पोर मदर सेल में अगर डिवीजन हुआ, माइटोटिक डिवीजन हुआ, मतलब मियोटिक डिवीजन हुआ, तो उससे भी 4 मेगास्पोर्स बनते हैं। तो दोनों के दोनों इन्वॉल्व मियोसिस। ऑप्शन नंबर C becomes the correct answer. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 पे, again from NEET 2015 re-exam. Filiform apparatus is a characteristic feature of A generative cell, B unicellular embryo, C aileron cell, fourth is synogyne। तो जो फिलीफॉर्म apparatus है वो एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सिनोजिड का। फिलीफॉर्म apparatus एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं which guide the pollen tube towards the synogyne, guide the pollen tube towards the synogyne। I hope that makes sense, okay। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है नीट 2015 में से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू इज व्हाट वी आर आस्किंग। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स, हाँ ये तो सही है। पॉलन ग्रेन्स काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, वेजिटेटिव जो सेल होता है उसमें अबंडेंट रिजर्व फूड मटीरियल होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रिच होते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैब, और उन्हें यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स। नेक्स्ट है pollen grains of some plants can cause severe allergies and bronchial afflictions in some people, that's true। कुछ स्पीशीज़ के pollen grains काफ़ी ज़्यादा एलर्जीज कॉज कर सकते हैं और स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, that's true। The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odor to attract them, ये भी ठीक है। फ्लावर्स वो फ्लावर्स जो पॉलिनेट होते हैं बाई फ्लाइज एंड बीटल, मतलब वो फ्लावर्स जिनमें पॉलिनेशन बीटल्स या फ्लाइज की मदद से होती है, वो फ्लावर्स फाउल ओडर प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज बीटल्स एंड फ्लाइज दे आर अट्रैक्टेड बाई फाउल ओडर। आई होप दैट मेक सेंस। हमें इनकरेक्ट नॉट ट्रू बतानी थी, तो ये तो सारी ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है हनी इज़ मेड बाई बीज बाई डाइजेस्टिंग पॉलेंस कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स, नो दैट दिस इज़ इनकरेक्ट। क्यों? हनी एक्चुअली में बीज बनाती हैं, नॉट बाई डाइजेस्टिंग पॉलन ग्रेन बट बाई डाइजेस्टिंग नेक्टर। तो हनी इज़ मेड फ्रॉम नेक्टर एंड नॉट फ्रॉम
पॉलेंस। तो क्या कहते हैं, बीज जो होती है ना, मैं अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ तो ऐसा होता है कि बीज बेसिकली जो होती है वो अल्टीमेटली नेक्टर को दे कंज्यूम नेक्टर, वो नेक्टर पे फीड करते हैं, जैसे वो नेक्टर पे फीड करती है, वो नेक्टर को फिर अल्टीमेटली स्टोर कर लेती है अपनी स्टमक में इन द नेक, ठीक है। फिर दे रीगर्टिटेट में तो उसे कुल्ला करके बाहर निकाल देती हैं, ठीक है। एंड दे स्टोर इट इन हनी कूम्स, जिससे हनी बनता है। सो दैट्स वेरी मच हाउ इट्स मेड फ्रॉम नेक्टर एंड नॉट फ्रॉम पॉलेंस। आई होप दैट मेक्स सेंस, ओके। सो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 इज फ्रॉम नीट 2015 अगैन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मे रिक्वायर पॉलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगेमी? ए गिटोनोगेमी, बी जेनोगेमी, ए ऑटोगेमी, बी जेनोगेमी, ठीक है, और सी एपोगेमी और फोर्थ है क्लिस्ट्रोगेमी। तो इनमें से कौन से है जिसमें पॉलिनेटर्स की ज़रूरत पड़ सकती है बट वो जेनेटिकली सिमिलर है टू ऑटोगेमी? दिस इज गिटोनोगेमी। गिटोनोगेमी में यूजुअली क्या होता है, गिटोनोगेमी में पॉलिनेशन हो रही होती है बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर्स बट ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। तो अगर मान लो 2 डिफरेंट फ्लावर्स हैं तो इस फ्लावर से मुझे इस फ्लावर पे भी ले जाना है, तभी मुझे पॉलिनेटिंग एजेंट्स तो लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स लगते हैं, इसलिए फंक्शनली या इकोलॉजिकली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट जेनेटिकली बिकॉज दोनों फ्लावर्स बिलोंग टू द सेम प्लांट, तो जेनेटिक मेकअप तो सेम होगा फ्लावर्स का, तो जेनेटिकली दिस इज सिमिलर टू ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन। द एग्जाम्पल आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 गिटोनोगेमी। आई होप दैट मेड परफेक्ट सेंस टू यू। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 पे। दिस इज फ्रॉम नीट 2015। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स टू एनिमल पॉलिनेटर्स? इनमें से कौन से काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए? कलर एंड लार्ज साइज ऑफ द फ्लावर, बी नेक्टर एंड pollen grains, third है फ्लोरल फ्रेग्रेंस एंड कैल्शियम क्रिस्टल, फोर्थ है प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्सूडेट्स, ठीक है। इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं एनिमल पॉलिनेटर्स के लिए? तो नेक्टर और pollen grains आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर एनिमल पॉलिनेटर्स, राइट। तो नेक्टर और pollen grains इंपॉर्टेंट रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 AIPMT 2014 का है। गिटोनोगेमी में क्या होता है? गिटोनोगेमी इन्वॉल्व्स pollination of a flower by pollen from another flower of the same plant, pollination of a flower by pollen from another flower of the same plant, pollination of a flower by the pollen from a flower of another plant in the same population, या pollination of a flower by the pollen from a flower of another plant belonging to distant population. Let's decode it. गिटोनोगेमी में क्या होता है? पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर, एक फ्लावर का पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है, बाय द पॉलन, ठीक है, लेकिन आप पॉलन ला रहे हो फ्रॉम अनदर प्लांट, आप पॉलन ला रहे हो फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। सो यस, ठीक है, पॉलिनेशन हो रहा है एक फ्लावर का, ठीक है, बाय द पॉलन, देन यू आर ब्रिंगिंग दिस पॉलन्स फ्रॉम अनदर फ्लावर बट ऑफ द सेम प्लांट। तो डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, डिफरेंट फ्लावर्स बट ऑफ द सेम प्लांट, गिटोनोगेमी। ऑप्शन नंबर ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। सेकंड वाला देखो, पॉलिनेशन हो रहा है एक फ्लावर का बाय द पॉलन्स फ्रॉम अनदर फ्लावर, बाय पॉलन्स फ्रॉम अनदर सेम फ्लावर की पॉलन्स ले आओगे अगर, तो एक्चुअली में वो क्या हो जाएगा, वो तो ऑटोगेमी हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। पॉलिनेशन करा रहे हो एक फ्लावर का बाय पॉलन्स फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है, पॉलिनेशन करा रहे हो एक फ्लावर का बाय ब्रिंगिंग पोलेंस फ्रॉम अ फ्लावर, ठीक है, आप पोलेंस लेके आ रहे हो एक फ्लावर से जो दूसरे प्लांट पे प्रेजेंट है। सो डिफरेंट प्लांट, ठीक है, ये हो जाएगा जेनोगेमी, तो ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा पॉलिनेशन। आप पॉलिनेट कर रहे हो एक फ्लावर को बाय ब्रिंगिंग पोलेंस फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, अगेन एग्जाम्पल ऑफ जेनोगेमी, बट इट बिलोंग्स टू अ डिस्टेंट पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये तो डिस्टेंट पॉपुलेशन को बिलोंग करता है, तो ये जेनोगेमी भी नहीं होगा सही तरीके से, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 इज फ्रॉम AIPMT 2014 अगेन। pollen tablets are available in the market for? pollen tablets मार्केट में क्यों अवेलेबल है? Why do you think they are available in the market? A. In vitro fertilization, B. breeding program, C. supplementing food, fourth है ex-situ conservation. pollen tablets market में available है for supplements, food supplements की तरह present as food supplements. I hope that makes sense, okay? Alright, moving on to the next question. Question number 47. Function of Filiform apparatus is to, this is from AIPMT 2014. Filiform apparatus का बच्चे काम क्या होता है? A. To recognize the suitable pollen at the stigma. No. Stimulate division of generative cell. Generative cell में division कराना, ठीक है, generative cell ultimately divide होगा ना, तो मेल गैमेट्स में generative cell में division कराना. No. To produce nectar. No, that's not the function. To guide the entry of pollen tube. Yes, that's true. तो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं कॉल्ड फिलीफॉर्म apparatus इन द सिनोजल्स, उनका काम क्या होता है? टू गाइड द एंट्री ऑफ pollen tube वेयर? बच्चों को लगता है टू गाइड द एंट्री ऑफ द pollen tube इनटू द egg cell. नो, इट्स क्लियरली मेंशन इन NCERT टू गाइड द एंट्री ऑफ द pollen tube इनटू द सिनोजल्स, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48 पे। दिस इज फ्रॉम नीट 2013 कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर ये 48 बोलता है मेगास्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल्स आफ्टर A. mitotic division, B. formation of a thick wall, C. differentiation of fourth है meiotic division. तो मेगास्पोर्स जो होता है, मेगास्पोर्स किससे बनता है? मेगास्पोर मदर सेल से। सो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट स्टेप ना, मेगास्पोर मदर सेल बच्चे अल्टीमेटली डिफ्रेंशिएट हो जाता है इनटू मेगास्पोर। सो मेगास्पोर्स बनते हैं मेगास्पोर मदर सेल थे आफ्टर मियोसिस, मियोटिक डिवीजन। मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, उसमें मियोसिस होती है और उससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनते हैं अल्टीमेटली, विच आर हैप्लॉइड,
ठीक है, आई होप दैट मेक्स सेंस. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 49 पे. क्वेश्चन नंबर 49 इज फ्रॉम नीट 2013 कर्नाटका. क्वेश्चन नंबर 49 बच्चे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स आर ऑलवेज ऑटोगेमस. यस, क्लिस्टोगेमी मतलब क्लोज फ्लावर्स होते हैं जो कभी खिलते नहीं है, वो उनमें हमेशा ऑटोगेमी होती है, सेल्फ पॉलिनेशन. ये तो ठीक है, दिस इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जेनोगेमी अकर्स ओनली बाय विंड पॉलिनेशन. ना, जेनोगेमी जो क्रॉस पॉलिनेशन है ज़रूरी थोड़ी है विंड पॉलिनेशन से ही हो, वो बायोटिक एजेंट्स की वजह से भी हो सकती है, किसी की मदद से हो सकती है फॉर दैट इंस्टेंस. ठीक है, तो ये तो गलत हो गया. कैस्मोगेमस फ्लावर्स डू नॉट हैव ऑन ऑल. नहीं, कैस्मोगेमस फ्लावर्स जो होते हैं वो होते हैं, कैस्मोगेमस फ्लावर्स वो होते हैं जो खुलते हैं. अब यहाँ पे अगर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होता है तो ये करेक्ट हो जाता है. कैस्मोगेमस फ्लावर्स तो खुलते हैं ना भाई. नेक्स्ट आ जाओ, तो ये भी गलत हो गया कि गिटोनोगेमी इन्वॉल्व्स पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. ना, गिटोनोगेमी में पॉलन और स्टिग्मा होते हैं, पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट तो सेम है बट फ्लावर्स डिफरेंट हो जाते हैं. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जेनोगेमी की है कि जेनोगेमी इन्वॉल्व्स पॉलन एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. सो ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 50 पे. क्वेश्चन नंबर 50 है नीट 2013 कर्नाटका. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. पहली है स्पोरोपॉलन कैन बी डिग्रेडेड बाय एंजाइम. स्पोरोपॉलन को डिग्रेड कर सकता है एंजाइम्स की मदद से. नहीं है, शायद में क्लियरली बोल रखा है नो एंजाइम दैट कैन डिग्रेड स्पोरोपॉलन हैज़ बीन नोन सो फार. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे. ऑप्शन नंबर 2 स्पोरोपॉलन इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मटीरियल. ये भी गलत है. स्पोरोपॉलन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल्स नोन. ऑर्गेनिक ना कि इनऑर्गेनिक. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. Sporopollen can withstand high temperature as well as strong acids and alkalis. That's absolutely true. Sporopollen high temperature झेल सकता है, बहुत strong acid, बहुत strong alkali can withstand it all. ठीक है, next आ जाओ. Sporopollen can withstand high temperatures but not strong acids. Sporopollen जो है it can withstand high temperature. Sporopollen can withstand really high temperature but not strong acids. नहीं, it can withstand high temperature, high pressure, strong acid, strong alkali, all of it. ठीक है, तो ये भी गलत हो गया. ऑप्शन नंबर 3 हियर बिकम्स द करेक्ट आंसर. आई होप यू आर एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर्स. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पे विच इज फ्रॉम AIPMT 2013. ठीक है, सो 50 प्रीवियस क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड. ओके, मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू. मेगास्पोर किसकी इक्वल होता है. मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू A फ्रूट, B न्यूसेलर, C ओव्यूल, D एम्ब्रियो सैक. ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम, जिसमें मेगास्पोर्स डेवलप होते हैं अंदर. ठीक है, मेगास्पोरेंजियम इन फैक्ट मोर प्रिसाइज एंड टेगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पे. ऑप्शन नंबर 52 की अगर मैं बात करूँ तो सॉरी क्वेश्चन नंबर 52 की. क्वेश्चन नंबर 52 इज फ्रॉम AIPMT 2013 अगेन. एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज A मोर विग्रस और द बेटर ऑफस्प्रिंग होते हैं. B नो डिपेंडेंस ऑफ पॉलिनेटर. C वाइविपैरिटी. वाइविपैरिटी होता है डायरेक्टली गिविंग बर्थ टू यंग वंस. और फोर्थ होता है हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी. अब देखो क्लिस्टोगेमी यानी क्लोज फ्लावर के अंदर से पॉलिनेशन हो रही है, तो हमें पता है क्या हो रहा है क्लिस्टोगेमी में. क्लोज फ्लावर के अंदर तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है. सेल्फ पॉलिनेशन का एडवांटेज सिर्फ यही होता है कि आप किसी पॉलिनेटर एजेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो. ठीक है, अगर बात आए पहले कि ज़्यादा विग्रस ऑफस्प्रिंग्स होंगे तो नहीं कह सकते हम. इनफैक्ट उल्टा इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी हो सकता है. वाइविपैरिटी या डायरेक्टली जन्म दे रहे हो. ये वाइविपैरिटी ओविपैरिटी का कॉन्सेप्ट हम एनिमल्स की विद रिस्पेक्ट टू बोलते हैं ना. और हायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी ना लेसर जेनेटिक वेरिएबिलिटी. सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी कहाँ से. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो आप करा नहीं रहे हो. सेम फ्लावर पे अगर आप पॉलिनेशन करा रहे हो तो नई जीन्स कहाँ से, जीन्स में वेरिएबिलिटी कहाँ से आएगी, नहीं आएगी. तो ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 पे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. दिस इज फ्रॉम AIPMT 2013. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड. नेक्स्ट है एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स. थर्ड है टिपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन. और फोर्थ है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड एज इंटाइन. अब आ जाओ, स्पोरोजिनस टिश्यू हैप्लॉइड होता है, गलत हो गया. एंथर के अंदर अगर आप डिहीसेंस ऑफ एंथर करते हो, एंथर के अंदर आपको 4 कैविटीज दिखती होंगी. दीज आर कॉल्ड एज थीका या माइक्रोस्पोरेंजिया. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया. इसके अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू भरा होता है. स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है पेरेंट स्पोरोफाइट का पार्ट है, सो इट्स डिप्लॉइड. तो हैप्लॉइड बोलना गलत हो जाएगा. एंडोथीसियम प्रोड्यूसेस द माइक्रोस्पोर्स. एंडोथीसियम प्रोड्यूस करती है. एंडोथीसियम से कवरिंग यार, एंडोथीसियम थोड़ी प्रोड्यूस करिए माइक्रोस्पोर्स को. स्पोरोजिनस टिश्यू प्रोड्यूस करता है माइक्रोस्पोर्स को, तो ये भी गलत हो गया. टिपिटम नरिशेस द डेवलपिंग पॉलन. यस, टिपिटम सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग पॉलन. ये तो ठीक है. हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड एज इंटाइन. नहीं, हार्ड आउटर लेयर विच इज मेड अप ऑफ स्पोरोपॉलन इज कॉल्ड एज एक्साइन एंड नॉट इंटाइन. क्लियर टू एवरीवन. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा. ऑप्शन नंबर 3. टिपिटम जो है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स. मेक सेंस. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर्स. बच्चे जर्म पोर्स का फंक्शन क्या है. दिस इज AIPMT मेंस 2012. ए एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन. सेकंड है इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब. थर्ड है रिलीज ऑफ मेल गैमेट्स. फोर्थ है इमर्जेंस ऑफ रेडिकल. जर्म पोर्स हम सबको पता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर मैं बनाऊँ तो ये हो जाएगी अपनी एक्साइन. ठीक है, अरे यार वेरी लाइट कलर, जस्ट अ मोमेंट. ये हो जाएगी मान लो अपनी आउटर लेयर एक्साइन.
ठीक है, और इसके अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है इनर लेयर कॉल्ड एज इंटाइन, ठीक है। अब एक्साइन जो होती है ना, मैंने बोलते अक्सर बोलता आपने सुना होगा कि एक्साइन जो होती है ना वो एक डिसकंटिन्यूस लेयर होती है। एक्साइन जो होती है वो एक डिसकंटिन्यूस लेयर होती है, क्यों? क्योंकि एक्साइन में अगर आप देखोगे तो बीच बीच में आपको ये कुछ पोर्शंस मिलेंगे जहाँ पे एक्साइन से डिसकंटिन्यूस होती हैं, ठीक है। दीज पोर्स आर एक्चुअली रेफर्ड टू एज जर्म पोर्स। इन जर्म पोर्स का बच्चा एक्चुअली में अगर मैं आपसे पूछूँ तो इन जर्म पोर्स का काम क्या है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फॉर सीड जर्मिनेशन, ये तो माइक्रोबाइल का काम होता है। वाटर अब्जॉर्प्शन सीड जर्मिनेशन के लिए माइक्रोबाइल का काम होता है, तो ये तो नहीं होगा। इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, यस, इनिशिएशन मतलब जर्मिनेशन, इलॉन्गेशन, इमर्जेंस ऑफ पॉलन ट्यूब, जो इंटाइन है यही एक्सटेंड होती है। पॉलन ट्यूब किसके थ्रू एक्सटेंड होती है? जर्म पोर्स के थ्रू। सो दिस इंटाइन इज द ओनली वन विच एक्सटेंड्स एज पॉलन ट्यूब, ठीक है, एक्सटेंड्स एज पॉलन ट्यूब। इनिशिएशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 55 पे। प्लांट्स विद ओवरीज हैविंग वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाय ए बटरफ्लाइज, बी बर्ड्स, सी विंड, फोर्थ बीज। दिस वाज आस्क्ड इन एपीएमटी मेंस 2012। तो वो प्लांट जिसमें क्या कहते हैं ओवरी के अंदर सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल होता है, बहुत ही कम ओव्यूल्स होते हैं, वो जनरली विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं। बाय दिस इज टू कॉम्पनसेट द लैंडिंग ऑफ फ्यू पॉलन ग्रेन्स विच आर लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, बिकॉज विंड पॉलिनेशन हमें पता है एक डायरेक्शन है, तो वेस्टफुल प्रोसेस है। सो वी नॉट रियली श्योर कि कितने पॉलन ग्रेन्स आके गिरेंगे, तो हम कहते हैं भगवान एक ही गिर जाए वही बहुत है, कि एक पॉलन ग्रेन एटलीस्ट एक ओव्यूल से फ्यूज़ कर जाए वही बहुत बड़ी गनीमत है, ठीक है। तो हम यूजुअली जो विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स देखोगे ना उसमें सिर्फ एक सिंगल ओव्यूल होता है इन दी ओवरी, राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 बिकम्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाओ 56 पे। 56 होता है गायनोशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्री पिस्टल्स इन द फ्लावर्स ऑफ ए येलो, बी टोमेटो, सी पैपावर और फोर्थ इन मिशेलिया। दिस वाज आस्क्ड इन एपीएमटी 2012। जो गायनोशियम होता है उसमें कई सारी फ्री पिस्टल्स होती हैं। किसके? गायनोशियम में कई सारी फ्री पिस्टल्स होती हैं, और द करेक्ट आंसर वुड बी मिशेलिया। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, देखो एनसीईआरटी में एलो और टोमेटो के बारे में कुछ नहीं दे रखा, बट लेट मी टेल यू। तो देखो ऑल्सो एनसीईआरटी में बच्चे सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एनसीईआरटी में देखो दे रखा है सबसे पहले, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, हिबिस्कस। तो एनसीईआरटी बोलती है जो हिबिस्कस है ना, 1 सेकंड, हाँ, एनसीईआरटी बोलती है जो हिबिस्कस है, हिबिस्कस में मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है। हिबिस्कस में मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस यानी मल्टीपल कार्पस है, सारे के सारे फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एनसीईआरटी बात करती है पैपावर की। पैपावर जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपियम बोलते हैं, ठीक है। पैपावर ओपियम, ठीक है, जो होती है इसमें क्या होता है, इसमें भी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन दिखती है और मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। फिर एनसीईआरटी बात करती है, फिर नॉट रॉन्ग, मिशेलिया की। एनसीईआरटी फिर बात करती है मिशेलिया की। मिशेलिया में भी मल्टी कार्पिलरी कंडीशन है, मोर देन 1 कार्पल्स होते हैं, बट सारे के सारे फ्री होते हैं, दे नॉट अटैच टू ईच अदर, नॉट फ्यूज विद वन अदर, सारे के सारे सेपरेट होते हैं। तो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, यानी सारे के सारे जो पिस्टल्स हैं वो फ्री होते हैं, सब मिशेलिया, ठीक है। अब एलो और टोमेटो ऑल्दो एनसीईआरटी में इस चैप्टर में नहीं दे रखा, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, एलोवेरा बिलोंग्स टू विच फैमिली? एलोवेरा बिलोंग्स टू मेंबर्स ऑफ लिलिएसी फैमिली। एलोवेरा कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? अब ये मॉर्फोलॉजी से कनेक्ट करना पड़ेगा। एलोवेरा बिलोंग करता है लिलिएसी फैमिली को। लिलिएसी फैमिली जो होती है इसमें ट्राई कार्पिलरी यानी 3 कार्पल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन 3 कार्पल्स होते हैं, लेकिन तीनों के तीनों फ्यूज होते हैं, तो ट्राई कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है, इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है। और टोमेटो की अगर मैं बात करूँ बच्चे, तो टोमेटो जो होता है बिलोंग्स टू सोलोनेसी फैमिली, और सोलोनेसी फैमिली में 2 बाई कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिलती है, बाई कार्पिलरी सिनकार्पस कंडीशन, राइट। तो ये भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड हेंस मिशेलिया इज द ओनली करेक्ट आंसर दैट वी आर लेफ्ट विद। आई होप दैट मेक्स परफेक्ट सेंस टू एवरीवन। Next are the question number 57 पे, which is even in the absence of pollinating agent, seed setting is assured in A. Commelina, B. Zostera, C. Salvia, and fourth is fig, ठीक है। तो इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग अश्योर्ड किसमें होती है? किसमें होगी? कैस्मोगेमस फ्लावर्स में, ठीक है, जो सॉरी क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स। तो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स के 3 एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में, वायोला, कॉमन पैंसी, कॉमेलिना और ऑक्सालिस। तो ऑफ कोर्स कॉमेलिना बिकम्स द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 58 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 इज फ्रॉम एपीएमटी 2012, जो बोलता है बोथ ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी आर प्रिवेंटेड इन ए. पपाया, बी. क्यूकम्बर, सी. कैस्टर, डी. मेज, ठीक है। तो मेज, कैस्टर और क्यूकम्बर, मेज कैस्टर की बात करो तो इसमें तो क्या होता है, इसमें मोनोशियस प्लांट होता है लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो इसमें ऑटोगेमी तो प्रिवेंट होती है लेकिन गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन पपाया और क्यूकम्बर में भी गिटोनोगेमी प्रिवेंट नहीं होती है। पपाया की अगर मैं बात करूँ तो पपाया में डायोशियस प्लांट होता है, यानी एक प्लांट होता है जिसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा प्लांट होता है जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स होते हैं, जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो ऑटोगेमी हो सकती ना गिटोनोगेमी हो सकती, सिर्फ, ठीक है, सिर्फ क्या हो सकती है? जेनोगेमी। सो ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी दोनों किस में प्रिवेंट हो सकते हैं? पपाया के केस में। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 59 पे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कैन विथस्टैंड एनवायरमेंटल एक्सट्रीम्स एंड कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम इज, ठीक है, ए. क्यूटिकल, बी. स्पोरोपोलिन, सी. लिग्निन, फोर्थ इज सेलुलोज। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कुछ भी झेल सकता है, कितनी भी एक्सट्रीम ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस को झेल सकता है, एंड इट कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी एंजाइम, दैट इज एक्चुअली स्पोरोपोलिन। ऑप्शन नंबर 2 बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट तो नहीं है अभी, तो हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे, डू नॉट वरी, ऑलमोस्ट नियरिंग द एंड, बट या वी हैव क्वाइट
लॉन्ग वाइल टू गो, नीट 2019 का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनोजिड। मेल गैमेट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं सिनोजिड में, राइट। ये एगापैरेटस होता है, ठीक है। एगापैरेटस के साइड में हमारे पास 2 सिनोजिड होते हैं, ठीक है, जिनमें से एक सिनोजिड में दोनों के दोनों हमारे मेल गैमेट्स जो है डिस्चार्ज हो जाते हैं। इन मेल गैमेट्स का फेट क्या है, वन फ्यूजेस विद दी एग, एक मेल गैमेट जाके, एक मेल गैमेट जो होता है वो एग से जाके फ्यूज़ कर लेता है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है फ्यूजेस विद द सेंट्रल सेल न्यूक्लियर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिकम्स द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ओके।